एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है और हम सबको एक बार फिर से अपनी महिमा के लिए इकट्ठा किया है। आज का आराधना हम लोग आत्मा और सच्चाई के साथ एक परिवार के साथ कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको जीवित और भला चंगा रखा है। आज ये दिन दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसके वचन से सीख सकें। हम इस समय आगे जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु के प्रार्थना के साथ आज की प्रार्थना का शुरुआत करेंगे। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हाथ को जोड़ेंगे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive all our debts as we forgive all our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Glory be to God the Father, Son. Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him. In His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my precious Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let a blessing fall on me. I surrender all. Thank you, Father God. Once again, Lord Father, thank you for this beautiful time you've given us to praise and worship my Father. And thank you for this day and this time, Lord Father. Father, now today, the word, Father God, you already chosen for us. Speak us the word that we will be blessed and get more wisdom and knowledge, and through the message, Father God, let many people will bless and their problem, their trouble, their difficulties will be solved today. The message, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. I had time. I can be submitting into your mighty name, Father God. Thank you, Lord, hearing and answering. In Jesus' name we pray. Amen. Right. Hallelujah. Hallelujah. We thank the Lord for this wonderful time the Lord has given to us to get together to worship Him and adore His name and sing a song for glorifying His name and also to learn from His word. So really it's been a great privilege and joy for all of us to be here together to worship. मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। इंग्लिश में it says that Mark's
Gospel according to Mark chapter 6 verse 12. And they went out and preached that men should repent. और हिंदी में कहा है तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। सो ये वर्ड यहाँ पे हम देखते हैं यीशु के वचन में ये लिखा हुआ है कि दे वेंट आउट एंड प्रीच्ड द गॉस्पेल दैट दे शुड रिपेंट। वे लोग बाहर गए सुसमाचार सुनाए ताकि लोग पश्चाताप करें। तो इस वचन के अनुसार थोड़ी सी हम बातें मनन करेंगे। मैं आपको पढ़ूंगा। रिपेंट, रिपेंट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटानियो and literally means to have another mind. Repentance is a necessary part of salvation. Repentance may include godly sorrow, but sorrow does not always include repentance. Repentance is simply a change of mind accompanied by corresponding action. There is a godly type of sorrow and an ungodly type of sorrow. Godly sorrow leads to repentance. Ungodly sorrow or the sorrow of this world just like kills. Positive through Jesus. So यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है ये बताते हैं दो चीजों के बारे में। सैरो जो रिपेंटेंस है, जो पश्चाताप है, दो प्रकार के पश्चाताप होते हैं। एक होता है ईश्वरीय पश्चाताप और एक होता है संसारिक पश्चाताप। ईश्वरीय पश्चाताप वो होता है कि जो चीज को हम कर रहे हैं उसके प्रति अगर हमें महसूस होता है कि हमने गलत किया है, हम पश्चाताप करते हैं। संसारिक पश्चाताप वो होता है कि कोई काम किया हमने, वो अच्छा नहीं हुआ और हमें गलत फील हुआ, लेकिन रिग्रेट नहीं होता, उसके प्रति हमें रिग्रेट नहीं होता है कि हमने किया है। तो जो पश्चाताप हम करते हैं, कोई भी काम को हमने किया है कि हम उस कार्य के प्रति पश्चाताप करें। यहाँ पे वचन में जो लिखा है दे वेंट आउट एंड प्रीच्ड द गॉस्पेल सो दैट दे शुड रिपेंट। परमेश्वर का वचन बताता है कि लोग बाहर गए, सुसमाचार सुनाने लगे ताकि लोग पश्चाताप करें। अब पश्चाताप किस बात के लिए करें? अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, अपने बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप करें और उनका मन फिरे। तो दोस्तों ये वचन के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने बुरे कार्य से फिरे। और फिरेगा कैसे? जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि वो बुरा कर रहा है, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो बुरे हैं या अच्छे हैं, वो पश्चाताप कैसे करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कई बार जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके अनुसार वो अच्छा है। लोग व्यभिचार करते हैं लेकिन उनके लिए वो मजा आ रहा है, उसमें अच्छा लग रहा है, उनके लिए वो पाप है नहीं। तो जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि व्यभिचार करना पाप है, तब तक वो पश्चाताप कैसे करेगा? चोरी कर रहे हैं, चोरी करने वाले के लिए वो पाप नहीं है, उसको लगता है मजा आ रहा है, उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, उसको कोई गिल्टी फील नहीं हो रहा है। तो जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि चोरी करना गलत है और गलत कर रहे हैं, तब तक उसको पश्चाताप नहीं होगा। झूठ बोलना, झूठ बोल कर लोगों को लोग बुद्धू बनाते हैं, उनको मजा आता है, अच्छा लगता है, उनको लगता है कि अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि झूठ बोल रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, तब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बातें हैं जो लोग हम चाहते हैं कि लोग पश्चाताप करें, हम जब तक जाएंगे नहीं बाहर, लोगों को बताएंगे नहीं यीशु के बारे में, सुसमाचार के बारे में, बातों के बारे में जो हो रहा है संसार में नहीं होना चाहिए, तब तक लोग पश्चाताप कैसे करेंगे? तो ये वचन हमें बताती है कि हम लोगों को कि लोग पश्चाताप कब करेंगे? जब तक आप और हम जाकर लोगों को बताएंगे नहीं कि वो कर रहा है वो गलत है, तब तक उसको पता कैसे चलेगा? इसलिए हर एक लोगों को ये सुसमाचार सुनाना जरूरी है। हर एक विश्वासियों को सुसमाचार सुनाना जरूरी है। जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने की जरूरत है। आज ये संसार जहां हम जी रहे हैं, सब लोग अपनी दुनिया में मस्त है, कोई किसी आत्मिक बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अधिक से अधिक लोग संसारिक चीजों पर ध्यान देते हैं, संसारिक चीजों को आनंद और मजा लेते हैं और वही उनका दुनिया है, उसी में लोग आनंद करते हैं। लेकिन जब आप और हम जाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, जो कर रहे हैं वो पाप है, तब तक वो पश्चाताप कैसे करेंगे? हमें और आपको जाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, मर्डर करना पाप है, धोखा देना पाप है, बुराई करना पाप है,
निंदा करना पाप है, लालच करना पाप है। ये सारी बातें जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, कैसे फील होगा? लोगों को पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी करते रहते हैं, उनको रिग्रेट फील नहीं होता है। जब आप और हम जाएंगे उनके पास, उनको बताएंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन उनसे बात करेंगे, तब वो लोग रिग्रेट करेगा। ऐसी बात नहीं है कि जो पाप करते हैं उनको नहीं पता कि वो गलत है, पता है। व्यभिचार करने वाले व्यक्ति को पता है कि वो व्यभिचार कर रहा है, गलत है, लेकिन उसका आत्मा उनको रिग्रेट नहीं करा रहा है, आत्मा उसको दोषी नहीं ठहरा रहा है, उनका विवेक उनको दोषी नहीं ठहरा रहा है। झूठ बोलने वाले को, निंदा करने वाले को, बुराई करने वाले को, उनके विवेक उनको सही बता रहा है। लेकिन जब हम जाएंगे उनके पास, परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, परमेश्वर का वचन उनसे बातें करेगा, तब उनको रिग्रेट फील होगा और वो पश्चाताप करेंगे, संसार से दूर कराएंगे। तो दोस्तों, आज का वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं, परमेश्वर हम सबको चाहता है, हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। हम अपने पड़ोस में, अपने समाज में, आसपास के लोगों को बताएं कि संसार में से लौटकर, संसार की चीजों से लौटकर परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें अपने गुनाहों का, अपने पापों का, और परमेश्वर को जानें। क्योंकि सच्ची सुखी, सच्ची शांति है वो इस संसार की चीजों में नहीं, बल्कि परमेश्वर में है। अगर दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा संसार में लोगों के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पोजीशन है, लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ है उनके पास, संसारी चीज, लेकिन शांति नहीं है। तो उनके पास जो शांति होता है पल भर के लिए होते हैं। रात में गए, मस्ती किया, सुबह आए, और सुबह गए, शाम को आए, मस्ती किया, लेकिन उसका जो लाइफ है उसमें कोई शांति नहीं है। इसलिए सभी को शांति की जरूरत है, और शांति देने वाला हमारा परमेश्वर है। शांति तभी मिलेगा जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। लोग जब सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर के वचन उनसे बातें करेंगे, और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, और शांति परमेश्वर को उनके हृदय में बसेगा। तो मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के वचन ने आप सभी को बात किया होगा, और आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठाएं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद। नाउ वी विल, आई बिलीव यू ऑल हैव अंडरस्टूड द वर्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर के वचन को आप सबने सुना है और सीखा है। इस समय हम लोग क्लोज करेंगे प्रेयर के साथ, एंड आई विल रिसाइट द लॉर्ड्स प्रेयर टुगेदर, एंड आई विल क्लोज टुडेस सेशन। Let's close our eyes. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive all our debts, forgive all our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, love of God the Father, sweet communion of the Holy Spirit, be with you all now and forever. Amen. Glory be to God the Father, Son, and the Holy Spirit. Hallelujah. All right. Thank you so much. May the Lord bless you all, and stay safe, stay home. Thank you.